وہ ریاست کا ہوتا ہے یا اس شخصیت کا ہوتا ہے جس کو تحفہ دیا جاتا ہے؟ یہ بہت سارے انگنت سوالات ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر تیزی سے صورتحال پھر بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. داعش وہاں پر ایک دفعہ سر اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. طالبان کی نئی حکومت اس کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. اس سب پر بات کریں گے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو آج ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر فیصل رضا آبدی. بٹ بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ توشہ خانہ جو ہے یہ کیا مسئلہ ہے توشہ خانہ کا, کیونکہ اس کے گرداب میں کئی سیاستدان آئے ہیں. کئی پہ کیسز چلے, کئی کو ظاہر ہے کیسز ابھی تک بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک اور صاحب جو کہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں بھائی توشہ خانہ سے ہم نے گفٹ لیے تھے اور ہم نے بیچ کے سڑک بھی بنا دی. معاملہ کیا ہے؟ سینیٹر فیصل رضا آبدی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر. بہت سارے سوالات ہیں آج میرے پاس کرنے کے لیے, لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ توشہ خانہ کیا ہے؟ مولا علی کا قول ہے کہ بارش کا قطرہ سیپ کے بھی منہ میں جاتا ہے اور سانپ کے بھی منہ میں جاتا ہے. سیپ کے منہ میں جاتا ہے موتی بناتا ہے, سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بناتا ہے. بہرحال دیکھیں, ہمیں اس پورے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی میں, لیکن ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے. اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر بارش کا قطرہ جو ہے وہ فقیر اعظم کے منہ میں چلا گیا اور انہوں نے خود قبول لیا. تو سچ بن گیا, بس سچ بن گیا. تو اس میں کیس اسٹیبلش ہو گیا. ہم نے اس کو آئینی اور قانونی طور پہ لینا ہے اس کیس کو کہ اس میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے, اور خاص طور پہ وہ قانون جو 18 دسمبر 2018 کو خود فقیر اعظم نے بنایا اس توشہ خانے کے لیے. تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال سب سے پہلے ہم چلیں گے جی کسی بھی شخص کے اوپر اگر ہم نے کوئی تنقید کرنی ہے, کچھ کرنی ہے, تو ہم نے ہمیشہ اپنے پیرامیٹر یہ رکھے ہیں, یا تو وہ نیشنل ایسٹ کو نقصان دے رہا ہو, یا عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہو, یا پھر عدالتی فیصلے. ہماری پوری 15 سال کی زندگی اسی پہ محیط ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ہم آرٹیکل 5 پہ. آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے, لیکن ساتھ میں سب سیکشن 2 میں وہ کہتا ہے دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ہر شخص اس پہ جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہو. اس کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں گے فوراً آرٹیکل 91 سب سیکشن 5 کے اوتھ میں جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے. آرٹیکل 5 سے آپ کس پہ گئے؟ 91 سب سیکشن 5 وزیر اعظم کا اوتھ, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر اوتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب الہی قرآن پاک خاتم الکتب اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین, جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے ساتھ ہم آئیں گے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. آئیں اب اس میں چیک کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ کیا, اپنے عہد سے وفاداری کی یا نہیں کی. تو جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لے کے آئیں. دیکھیں میں آپ کو اس وقت 5 ملکوں کے توشہ خانہ کے قوانین پیش کر رہا ہوں جو ان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں. سب سے پہلے تو انڈیا کا سب سے مشہور توشہ خانہ کیس یہ سامنے آیا کہ 1081 گفٹ. یہ چونکہ انڈیا کی ڈیموکریسی کی آپ کو سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں, تو لیٹس سٹارٹ فرام انڈیا. 1081 گفٹ ملے مودی کو, اور اس نے اس کو اوپن بٹ کر کے عوام میں, اور وہ تمام پیسے جو ہے گنگا کی صفائی کے لیے مختص کر دیے انڈیا میں. ٹھیک ہے. نمبر 2, gifts that PM God have received auction bids minister, اور یہ پوری اچھا اب یہ UK ہے. UK کے اندر چونکہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, لیکن ان کی انڈیا نیوز NDTV کی سٹوری ہے. UK کے اندر آپ صرف 50 پاؤنڈ کا گفٹ حاصل کر سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں. ہاں, اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آنا جانا ہے آفس کے اندر تو اپنی گاڑی استعمال کریں, اپنی استعمال کریں, سرکاری نہیں. یہاں تک انہوں نے بائنڈنگ کی ہوئی ہے. یہ ہے UK کا توشہ خانہ کا. نمبر 3, آسٹریلیا کہتا ہے جی کہ آپ 100% اماؤنٹ ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسٹم ڈیوٹی, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور تمام چیزیں پرووائڈ لیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ گفٹ لے سکتے ہیں. یہ ہے آسٹریلین. اس کے بعد آ جائیں جی آپ امریکہ کا. امریکہ کے اندر آپ صرف $50 کا گفٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام سرکاری ملکیت ہے, اور وہ میوزیم کے اندر جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی. یونائٹڈ اسٹیٹ. سب سے آخر میں آ جائیں جی بنگلہ دیش. 100% آپ رقم ادا کریں گے. 100% آپ رقم ادا کریں گے. کوئی اس کے اندر آپ خیانت نہیں کریں گے. آپ تمام ٹیکسز ڈیوٹیز کو باقاعدہ پے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی آپ کے توشہ خانے کے خان صاحب, جنہوں نے 58 گفٹ لیے پاکستان میں, اور صرف 20% تھا اس وقت. ہاں, انہوں نے پھر اس کو 18 دسمبر سے پہلے 20% تھا, تو انہوں نے وہ اس وقت 20% پہ گفٹ اٹھائے. اچھا, یہ گفٹ جو ان کو دیے گئے یہ ہم 2 قسطوں میں کریں گے کام. ایک دن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 18 سپتمبر 2018 کو
तारीख के सबसे महंगे तरीन गिफ्ट इनको क्यों दिए गए और इनसे क्या काम लेना था, और उसके साथ जो एक एनवेलप था जिसमें एक तस्वीर थी, वो क्या आएगी अगले प्रोग्राम में, वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। नहीं तो ये तो मेरी बात तो पहले सुने, ये सारे लोग 100% अदा करें, ये $50 तक का तोहफा दे सकते हैं, बाकी सारे हमारे पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में देखें, इसमें जाना पड़ेगा हमें तोशा खाना के कानून पे, जो इन्होंने, हम बाकी पिछले पे नहीं जाते, इस पे आते हैं जो 18 दिसंबर 2018 को इन्होंने बनाया। ये है वो कानून, और मैं अब इसको पढ़ता चला जाता हूं ताकि आपके लिए इसमें बहुत आसानी पैदा हो जाए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी मुल्क से आपको गिफ्ट मिलेंगे, वहां का सफीर की ये ड्यूटी है, शेल भी हर सूरत वो आपके कैबिनेट डिवीजन को इसको प्रोवाइड करेगा और पूरी लिस्ट फराहम करेगा, जिसके बाद इसका कानून शुरू होता है। इस पे आएंगे आप इसके सेक्शन 5 पे। कैबिनेट डिवीजन सेक्शन 5 कहता है कैबिनेट डिवीजन विल गेट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स असेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपर्ट इन एफबीआर। कैबिनेट डिवीजन विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ गिफ्ट असेस्ड बाय द प्राइवेट अप्रेजर born on its approved panel। यानी कैबिनेट डिवीजन में जैसे ही वो गिफ्ट पहुंचेंगे तो वो एफबीआर के अफसरान को फौरी तौर पे अपॉइंट करेगा जो उसकी वैल्यू लगाएंगे, और अगर उससे आप मुतमईन नहीं हैं तो आप पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, वो जो अप्रूव पैनल है आपके पास, वहां से अप्रेजर से आप इसकी वैल्यू लगवा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट डिवीजन ये गिफ्ट बेच सकता है। ठीक है, 110% बेच सकता है। ये जो कहते हैं ना कि नहीं बेचे जा सकते, ये गलत कहते हैं। अच्छा, बेच सकते हैं। आगे आते हैं प्रोसीजर पे। विद प्रोसीजर है, अच्छा, विदाउट प्रोसीजर नहीं है। नंबर 2, इसका मकसद इन्होंने बेचे हैं, ये सही बेचे, लेकिन बगैर प्रोसीजर के। मैं उसी पे आऊंगा, विदाउट प्रोसीजर है। देखें ना, इस पे आ जाए, इसके पैरा नंबर 6 सब सेक्शन 2 पे। ओके, गिफ्ट वैल्यू, अच्छा आप पढ़ें। गिफ्ट वैल्यू 30,000 may be allowed to be retained by the reception or payment of 50% of the value exceeding the basic exemptions of gifts of the historical value. All such gifts shall be properly catalogued and displayed at the prominent buildings owned by the catalog, and display all different gifts articles given by the single dignitary to functionary at one's occasion will be treated as a single gift. अब इसमें ये है कि जो 30,000 तक का गिफ्ट आपको मिला है वो आप फ्री रख सकते हैं, लेकिन 30,000 से जो ऊपर की मालियत का गिफ्ट है उसको आपको 50% देना पड़ेगा, और उसके बाद वो भी आप रिटेन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप वो गिफ्ट नहीं ले सकते, आप वो बेशक गिफ्ट ले सकते हैं। 30,000 गिफ्ट ले सकते हैं आप। अब आ जाए इसके सब सेक्शन, इसके पैरा नंबर 12 पे आ जाए। गिफ्ट्स अदर देन दोज इन द नेचर ऑफ एंटीक और हिस्टोरिकल वैल्यू, वो गिफ्ट जो कि एंटीक और हिस्टोरिकल वैल्यूज में नहीं आते, ठीक है, गिवन टू बट नॉट रिटेन बाय द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर्स, यानी कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान और गवर्नर वो ले सकते हैं, वो बेच भी सकते हैं। विल बी सोल्ड इन अकॉर्डेंस विद सब पैरा नंबर 10 अबव। आप वो गिफ्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद दुकानों पे नहीं जा सकते, आप खुद उसको बेच नहीं सकते। आपका मसला ये है कि आपने यहाँ पे कबूला कि आपने गिफ्ट बेचे, हालांकि आप ही के बनाया हुआ कानून कहता है कि आप नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है, अगर आपको मतलब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत से उतरते के साथ ही आप 100 रुपए की भीख मांगने पे आ गए, आपके हालात खराब हो गए, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, 3 करोड़ रुपए आपने नहीं, वो सड़क छोड़े ना, हम इस पे नहीं जाते, हम कानून पे आते हैं ना। ये तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बेचे ना, हम तो आज की बात कर रहे हैं। अगर आप वो आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने 3 करोड़ रुपए तोशा खाने के गिफ्ट हासिल कर रखे हैं और आपको वो पैसे वापस चाहिए हैं, आपको जरूरत पड़ गई है, तो आप डायरेक्ट नहीं बेचेंगे। स्ट्रेट अवे आपने डायरेक्ट नहीं बेचना, आपने जाना है सब पैरा 10 पे। कानून के मुताबिक सब पैरा 10 क्या कहता है? गिफ्ट विच आर नॉट फिट टू बी रिटेन और डिस्प्लेड शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द predical sale to arrange by the cabinet division। आपने वो गिफ्ट फौरी तौर पे कैबिनेट डिवीजन के हवाले करने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट उस गिफ्ट को हासिल कर लेगी आपसे। These sale shall be held once or twice a year। ठीक है, ये सेल कैबिनेट डिवीजन करेगी साल में 1 या 2 बार। अब तक कैबिनेट डिवीजन ने कहीं पर भी ये सेल नहीं की, कुल्ली कानून की खिलाफ वर्जी। The list of the gift to be sold shall be circulated to all federal government officers and officers of the armed forces। अगर ये गिफ्ट कैबिनेट डिवीजन बेचने की ऑफर करेगी तो सबसे पहले बैरोक्रेट्स को करेगी और आर्मी के यानी फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को करेगी। अगर वो ये ना ले सके, ये मतलब गिफ्ट की मालियत ज्यादा है, वो ना ले सके, तो फिर क्या होगा? द आर्टिकल नॉट परचेज इन टू कंसेक्यूटिव ऑक्शंस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स।
should be disposed of to the public through sealed bids. आपको ये गिफ्ट कैबिनेट डिवीजन जो है, अगर ऑन ऑफिसर्स ना ले सके तो आपको अवाम पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम के सामने पेश करने, आपने 25 करोड़ अवाम के सामने पेश करने जो इसकी बिड लगाएंगे, इससे पैसा हासिल करेंगे। अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए अदा किए तो उस गिफ्ट के 3 करोड़ रुपए आपको अदा किए जाएंगे, बाकी के 11 करोड़ खजाने में जमा हो जाएंगे, आपकी जेब में नहीं जाएंगे। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जब ये आपको गिफ्ट दिए जाते हैं तो इसके ऊपर ना आपसे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, ना सेल टैक्स लिया जाता है, ना एडिशनल सेल टैक्स लिया जाता है, ना इनकम टैक्स लिया जाता है, जो कि एग्जम्पशन है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले ये मिसाल पेश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे हाई वैल्यू जो अब तक टारगेट सामने आया है घड़ी का, वो है 58 लाख रुपए की। ये है उसकी जीडी, जिसके अंदर तमाम टैक्सेस अदा किए मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने, दूसरे पाकिस्तानियों ने। उसके अलावा ये हार जो 5 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया गया, जिसको तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस अदा किए मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने और तमाम पाकिस्तानियों ने। उसकी वजह ये कि ये पेन अगर 1 रुपए का दुबई में तो पाकिस्तान में 3 रुपए का। ठीक बात है। तो आपकी जो वैल्यू लगाई गई जो 18 करोड़ की बिकी, सबसे पहला जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की वो 8 करोड़ रुपए शो कर दिए, तमाम गिफ्ट की वैल्यूज को अंडरमाइन कर दिया, वैल्यूज को 10 रुपए की चीज को 1 रुपए पे शो करके, और आपने वो गिफ्ट उठा लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आप अंदर ओथ थे, आप सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकते हैं इस कानून के तहत, ओवरसीज में नहीं। ये है सबसे बड़ा आपका डिफॉल्ट जो आपने किया। आपने पाकिस्तान की एक अमानत को गैर मुल्क ले जाके बेच के अपने ही बनाए हुए कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी। ये है आप वजीर आजम, आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ये भी बाइंडिंग है कि आप बेचेंगे तो यही बेचेंगे? नहीं नहीं, बाइंडिंग है, आप नहीं बेचेंगे, आप नहीं, मतलब हुकूमत पाकिस्तान बेचेगी, कैबिनेट आपने, और बाहर नहीं बेच सकते, अपने बाहर मुल्क तो में बेच ही नहीं सकते ना। यही तो सबसे बड़ा इसके अंदर बाइंडिंग है कि आप कोई भी गिफ्ट बाहर नहीं बेच सकते। आपको बेचना है तो आप कैबिनेट डिवीजन को देंगे, कैबिनेट डिवीजन उस पर साल में 2 बार, फौरन नहीं, साल में 2 बार वहां पे ऑप्शन अप्लाई करेगी। सबसे पहले वो लिस्ट आपने जब बेचा तो आपकी कैबिनेट डिवीजन ने क्या ये लिस्ट फेडरल गवर्नमेंट को अप्लाई की? नहीं की। क्या आपने आर्म फोर्सेस को या अलाउ किया? आपने नहीं किया। उसके बाद 6 महीने बाद आपको इसको लाना था पब्लिक ऑक्शन में, जिसमें अवाम पाकिस्तान का हक था इसको लेने का, ताकि ये पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। आपने जो 10%, 20%, 50% दिया है वो मिना करने के बाद, वो आपको अदा करने के बाद ये तमाम पैसे खजाने में जमा होने थे, बनी गाला में या आपकी पॉकेट के अंदर नहीं जाने थे। तो आपने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने आईने पाकिस्तान को धोखा दिया। ये केस एस्टैब्लिश हो गया आपके इकरार के साथ ही, और इसकी वाहिद सजा बनती है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ता हयात नाअहल। आप ताहयात नाअहल हैं सियासत से। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, ये जो सारी आपने अभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूफ किया कि ये जो बेचने का अमल था वो ठीक था, लेकिन तरीकेकार गलत था। अब तरीकेकार जो अपनाया गया वो रूल्स के हिसाब से नहीं। आप जो भी कोई चीज आपको मिलती है, देखें जब एडी हैं, दूसरे इदारे हैं, इनको एम्बुलेंसेज आप लाके देते हैं, दूसरे इदारों को लाके देते हैं, तो टैक्स एग्जेम्पशन होती है, आप वो बेच नहीं सकते। वो आखिर में क्या करते हैं, खोल खाल के कबाड़ मार्केट में बेच देते हैं। आज तक इनके पास भी एम्बुलेंसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं, हजारों एम्बुलेंसेज इस तरह जाया करती है पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूं कि जब यहां पे आपने ना ड्यूटी दी ना टैक्स दिया, आपने 1 रुपए की चीज को 1 रुपए में ही उठा लिया, चले वैल्यू भी आपकी मान ली मैंने। उसके बाद अगर आप पे ये वक्त आ गया आपने बेचना है, तो इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नर अगर ये देना चाहें तो सब पैरा 10 पे जाएंगे। सब पैरा 10 ये कह रहा है कि आप ये कैबिनेट डिवीजन के हवाले करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे कि मेरी चीज बेचो। आप नहीं बेचेंगे, वो बेचेंगे। तो अब इस सब के बाद आप कह रहे हैं कि नाअहल हो जाएंगे? ये केस एस्टेब्लिश हो गया। आप जो पूरे पाकिस्तान को झूठ बोल रहे हो, मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी, ये कानून मैंने बनाया है। ये 18 दिसंबर का कानून जो है, ये दिखाएं जी, ये इनका ही कानून है ना। ये देखें, ये इनका कानून है। 18 दिसंबर 2018 को आपने ये कानून बनाया बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। आपने कानून बनाने के बाद उस कानून की खुद धज्जियां उड़ाकर आपने साबित कर दिया कि आप रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं अवाम में झूठ बोल रहे हैं। आपने अवाम में आके झूठ बोला, मेरा गिफ्ट है मेरी मर्जी में बेच दूं। आपने आप बेच ही नहीं सकते। अच्छा, इस जिम के अंदर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी मौजूद है। बिल्कुल है। अब मेरी बात
सामने मैं उन चीफ जस्टिस को और उन वकला को कहता हूं, आए ये कानून उठाएं, इस कानून को पढ़ें, और अब तक ये जितने भी हुक्मरान हैं 20 साल के, उन सबसे गिफ्ट की जरा शनाख्ती परेड कराएं। उन्होंने कहा है, जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स है, मैं यही इसलिए पढ़ के सुनाना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग ताइफ घर ले गए उनसे भी लेके आओ, और जो सूरत हाल बनी उस वक्त की वो सारा रिकॉर्ड हमें दिखाओ। नहीं, रिकॉर्ड नहीं लाओ, वो तहाइफ मंगाए। अगर तहाइफ उन्होंने दिखा दी है तो इट्स ओके, और अगर उन्होंने ताहिफ भेज दिए तो वो भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, गिलानी साहब हो, राजा परवेज अशरफ साहब हो, वो भी डिस्क्वालीफाई है ताहयात। इसके साथ साथ आपने यहां पर सबसे बड़ा जो टांका लगाया है वो गवर्नमेंट के एफबीआर फंड को लगाया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लगाया है। आपने ना इस पे ड्यूटी दी, ना आपने इस पे सेल टैक्स दिया, ना आपने इस पे इनकम टैक्स दिया, और आपने इनको 14 करोड़ रुपए का फायदा अपनी जेब में डाल लिया। आपके ऊपर सीधा सीधा ये नैब करप्शन केस है। दो केसेस हैं आपके। अब मैं, और अभी तक आपने बहुत सादा अल्फाज में चीज को बयान किया है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो प्रॉपर्टी होती है तोशा खाना की, या जैसे प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दिया जाता है, तो वो उनका गिफ्ट होता है या आपकी रियासत का गिफ्ट होता है? उस शख्सियत के लिए उसको पहल की जाती है कि चूंकि आपको मिला है, इसलिए अगर आप इसकी 50% अमाउंट दे देते हैं या 20% दे देते हैं, आपने तो 20% उठाने के बाद कानून 50% बनाया ना, ये आपकी नियत थी। हर चीज तो नियत पे चलती है ना। अच्छा, मैं आपसे, वो पहले उसी का होता है कि अगर वो चाहे तो 50% दे के रिटेन कर ले, रख ले अपने पास। बेच नहीं सकता, बेचा नहीं जा सकता ये, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेशन का मसला है। जो स्टोरी मुझे पता चली, आई डोंट नो वो आपके पास है बात या नहीं, कि जो इनको घड़ी दी गई थी इमरान खान साहब को, वो 2 ही पीस जो हैं वो बनाए गए थे। वो तो ऑलरेडी एंटीक हो गया ना। हाँ, वो एंटीक तो बेचा ही नहीं जा सकता। वो एंटीक था, और जिस शॉप पर वो गया बिकने के लिए, उन्होंने फोन किया था शायद सलमान साहब को, मोहम्मद बिन सलमान को। कल को सरकार दो आलम का कोई नालायन गिफ्ट मिल जाए या कुरान पाक का कोई पुराना नुस्खा मिल जाए, तो उसके लिए लाजिम है, शेल भी लिखा, लफ्ज लिखा है, लाजिम है कि आप एक तोशा खाने के कमरे यानी बैतुल माल के अंदर उसको जमा करा देंगे। पूछना तो आपसे ये है कि ये बैतुल माल के अंदर आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप वाली मिसले रियासत मदीना अपने आप को पेश करते हैं, ये काम है आपका, ये सिखाया आपने यहाँ पे आवाम को। अच्छा, मतलब आपने खुला धोखा दिया है। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में ही बेच सकते, आपने इतना बड़ा कानून तोड़ा कि पाकिस्तान के अलावा आपने बाहर ले जाके बेच दिया। सबसे बड़ा तो जुर्म इसका ये आदमी का, इसने पाकिस्तान के एसेट्स को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने के बजाय बैरून मुल्क बेच दिया, क्योंकि यहां बेचता तो पकड़ा जाता। कोई चीज इसको इतनी कीमती खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। 18 करोड़ की घड़ी को 8 करोड़ में बेच दिया आपने। शहजादे ने 18 करोड़ में अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस खरीदा, तो वैल्यू भी सामने आ गई। आपकी वैल्यू ये काउंट होगी जिसके ऊपर शहजादे ने उठाया है, आपकी वैल्यू नहीं काउंट होगी। दूसरा, उसने पता है आपको ये घड़ी क्या कह के दी थी बनवाते हुए? अब मैं अल्फाज आपको पेश करता हूँ, मैं आपको उस दिन की मीटिंग की एक एक चीज़ बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ। घड़ी इसने देते हुए कहा था कि एक आप अपने हाथ पे बांधना, एक मैं अपने हाथ पे बांधूंगा, ताकि जब भी मैं घड़ी देखूं तो मुझे आप याद आए, और आप देखें तो मुझे मैं याद आऊं। काफी क्लोज कांटेक्ट रह गया, काफी क्लोज मतलब पाकिस्तान की इज्जत पर इससे बड़ा बट्टा आप क्या लगाएंगे? आप यहां बेच देते तो इज्जत भी बच जाती, आपने ले जाके उसी कंपनी को बेच दिया जिसने ये घड़ी बनाई थी। तो उसके पास भी कोई और खरीदार तो था नहीं, शहजादे से राब्ता करके गया, उसने बोला दोबारा खरीद लो। जिसके बाद आपको याद होगा ये शाही जहाज में गए थे अमेरिका, वापसी में ये कमर्शियल फ्लाइट में इनको आना पड़ा, तो ये उस चेंज का दिन था। उसी दिन ये डिस्क्लोज हुआ था शहजादे पे कि वो जो घड़ी इतनी अकीदत से के साथ दी थी, हमें शहजादे से हजारों इख्तिलाफ होंगे, लेकिन इंसानी असूल पे नहीं हो सकता। तोहफा तो वैसे वो आपने ये काम किया, तो ये आपने सरन आईने पाकिस्तान को धोखा दिया। आपने अपने हालत से गद्दारी की। डिस्क्वालिफिकेशन का बनता है, केस डिस्क्वालिफिकेशन का एस्टैब्लिश हो गया। ये और इनके साथ देने वाले तमाम लोग लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए पाकिस्तान की सियासत से। ये कोई पब्लिक ऑफिस हेल्ड नहीं कर सकते, ना वजीर आजम का, ना किसी वजारत का। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कोई हमने जुर्म नहीं किया। ये जुर्म मैंने बता दिया ना, अपने बनाए हुए कानून का इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? अपने ही कानून। आप जलसों में क्या बात कर रहे हो? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ है। लेकिन आपको लगता है कि एस्टैब्लिश होगा? ये हो चुका ना, मैंने कर दिया ना, आज एस्टैब्लिश हो गया। अब जिसने आगे इसको लेना है इन चीजों में से ले ले। ठीक है, आप लोग जब तक कानून के आके बात नहीं करेंगे ना, मसले का हल नहीं हो सकता। लेकिन इट्स वेरी मच ओपन एंड क्लियर कि तोशा खाना जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैतुल माल की चीजों को बड़ा क्लियरली यहाँ पर आप बेच नहीं सकते। बेचने का एक तरीका है। और मुझे ज्यादा हैरत शायद इस बात पे है, हालांकि मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन ये हैरत की बात है कि अपने मुल्क में बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते। एक चीज और बताओ, और भी ज्यादा इसमें कौन-कौन, इसमें अब जो इन्होंने कानून में अमेंडमेंट की, इसके अंदर कौन-कौन बाउंड हो गया? प्रेसिडेंट,
हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि खातून खाना ने भी बेचने थे ना, इसलिए यहाँ पर आपने फैमिली मेंबर डाल दिया, जबकि आगे किसी की फैमिली नहीं है, चेयरमैन सेनेट, नेशनल स्पीकर, चीफ जस्टिस। अच्छा फैसल, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि तोशा खाना का मामला मेरा ख्याल है हमने काफी हद तक निपटा ही दिया है, लेकिन सूरत हाल जो बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान की सूरत हाल बिलखुसूस, जरा उस पर मुझे बात करनी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग। और वक्त बहुत कम होता है, कोशिश होती है कि कुछ चीज़ों का अहाता जल्दी जल्दी करें, लेकिन कुछ मामला बहरहाल फिर भी रह जाते हैं। जुमे की ही बात है, अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा कि सुबह कंदूज है, वहाँ पर एक मस्जिद में बम धमाका होता है और इस धमाके में 33 अफराद शहीद हो जाते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी तादाद अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 45 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये शायद जब अमरीका वहाँ से उसका इनखला शुरू हो रहा था, हम जब भी इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज चूँकि फैसल साहब आए हुए थे तो मैंने कहा जरा इस मामले पर बात कर लें। फैसल, मामला ये है कि अफगानिस्तान में हुकूमत तो मौजूद है तालिबान की, लेकिन ये जो दाइश की बढ़ती हुई कार्रवाइयां हैं, आपको लग रहा है कि ये वहां पर खुद को मजबूत कर रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं, और इस दौरान ये इससे भी ज्यादा एक्सीड कर सकती हैं चीजें जो मंजर अभी तो आपके तमाम प्रोग्रामों में आपको बताया कि अमेरिका जहां से निकलेगा वो दाइश और तालिबान छोड़ के यहाँ गया है, तो ये जंग तो आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आनी है। आपके सरहदी इलाकों पर रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो कोई ताज़ियत भी नहीं है ना। 1135 अफराद 2 महीने में अफगानिस्तान में मस्जिदों में ही शहीद हो गए नमाज के दौरान। हमारे यहाँ कोई ताज़ियत नहीं है, बच्चे शहीद हो गए, कोई ताज़ियत नहीं है, क्योंकि वो एक मखसूस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तासुब की बुनियाद बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, कौन ताज़ियत करेगा? यही वज़ीर आज़म था, शर्म से डूब मरने का मुकाम है, कोयटा में शहादतें दी। ये वाहिद ताज़ियत क्या हुई? वो जाके सरकारी महल में बैठ गया और लवाकिन खुद आए अपनी ताज़ियत लेने के लिए। डूब मरने का मुकाम है, खुदा की लानत हो ऐसी ताज़ियत पर। पेशावर में हुआ, ये पेशावर में जलसा करने चला गया, इसकी हुकूमत थी, लेकिन ये ताज़ियत करने 3 किलोमीटर के फासले पे लवाकिन मौजूद थे, ये नहीं गया। उनको इतना इंतजार था कि जलसा करना है, हमारे पास भी दाद रसी के लिए आएगा, ये गया ही नहीं, किसी की ताज़ियत में नहीं गया। इसको भी छोड़ें, बचपन से मैं और आप इस्लाम के शहदा ही रहे, हमने इस्लाम की अकीदत को हर तरफ देखा और जांचा है। दुनिया में मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। दीन बहुत आए, दीन खुदा के मुकाबले में दीन अकबरी ले आया, अकबर बादशाह, तो ये भी दीन इमरानी ले आया। कैसे? अजान होती है ना, तो और रमज़ान में ख़ास तौर पे अजान हो तो ईमान वाले सीधे सफ में जाते हैं, अल्लाह के हुजूर इबादत करते हैं। और इसके जलसों में जब अजान हुई है, नाच गाना और कंजर खाना शुरू रहा। अल्लाह की लानत और अजाब नहीं आएगी तो मुसलमानों तुम पर क्या आएगा? आज तुम कीड़ों बड़े आटा खा रहे हो, आज तुम गोश्त के अंदर पीप खा रहे हो। खुदा की लानत हो इन लोगों के ऊपर जो अजान के बाद नाच गाना शुरू कर दें। लेकिन ये दीन इमरानी भी आप लोगों ने वसूल किया। इस मुल्क के अंदर ये दीन इमरानी खुल के आ गया, ना ताज़ियत पे जाना, ताज़ियत के लिए महलात में बुलाना, बराबर में ताज़ियत हो, नाच गाना करना, उधर ताज़ियत ना करना। भाई तुम्हारी हुकूमत में पेशावर के लोग शहीद हुए थे, तो तुम्हारी सूबाई हुकूमत थी, तुम ताज़ियत के लिए नहीं गए। और उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग अगर इसकी हिमायत में है ना, तो मसला इसके जमीर में नहीं, मसला उन लोगों के खमीर में है। ठीक है, मैं लेकिन अपना डीएनए कराएं जाके। तकरार से सवाल कर रही हूँ फैसल कि इस वक्त जो ये खतरनाक सूरत हाल हमें खित्ते की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, कंदूज में जो हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक वहां हुआ था। मैं आपको हलफ दे के कहता हूं, जो वहां हुआ आने वाले दिनों में पाकिस्तान के गली कूचों में आप देखेंगे। ये फौज को कमजोर इसीलिए तो किया जा रहा है ताकि ये यहां पर अनारकी फैले और सरहदों से जंग ऑटोमेटिक अंदर आ जाए। यहां तो लाखों तालिबान दहशतगर्द ऑलरेडी मौजूद है, हजारों तालिबान दहशतगर्द तो इसलिए छोड़े, किस लिए छोड़े? फौज को किस लिए हमला किया जा रहा है? क्यों आर्मी चीफ पे बार बार आप अटैक कर रहे हैं? इसलिए कि पूरे इदारे को आप आवाम की नजरों में मजरू कर दें और यहां पे तालिबान आके वही काम शुरू कर दें जो अफगानिस्तान में हो रहा था। ये होना है। आप अच्छे सुने, FRA का कानून हरकत, बॉल को आप हवा में फेंकें, बॉल वापस आएगी, तो क्या बीच में से उठ सकती है? नहीं, जब तक के इम्पैक्ट पे ना लगे, जाके इम्पैक्ट पे लग के उठेगी ना, तो यही आपकी मैशियत की सूरत हाल अब नहीं उठ सकती। जो कर ले आप, जो करना है आपने, नहीं उठ सकती वक्त के इम्पैक्ट ना हो। मैं उस इम्पैक्ट को, उसके डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा आपसे वादा है, हमारी रिसर्च ऐसी है कि 2025 में पाकिस्तान कर्ज फ्री जाएगा। उसके लिए हमें किसी हुकूमत या सियासत की जरूरत नहीं है। अगर ये हम अपनी रिसर्च देंगे, अनस्टेबिलिटी रहती है और रहेगी मेरी बहन, बहुत शदीद है। आप लोग के, मैं अगर वो हलाकतों का तखमीना बता दूं जो आलमी दहशतगर्द एजेंसीज ने हमारे लिए तय कर रखा है, जो हम डिकोड कर चुके हैं, तो आप डर जाएंगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो मुझे ये बताइएगा कि बस मौला अली का एक कॉल, जमाना आखिर में
वादी सिंध के दरिया 7 बार इंसानी खून में तब्दील होंगे और मुकाबला खारजियों से होगा। अब आप हुलिये तलाश कर लो जो मौला ने और रसूल खुदा ने खारजियों के बताएं, वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको दुश्मन नजर आ जाएगा और उसको छोड़ने वाले, उसकी हिमायत करने वाले खारजियों के दोस्त होंगे दोस्त, और खारजियों पे खुदा और उसके रसूल की लानत है, लानत। वेल थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल आजादी। बातें बहुत सारी थी, मैं कोशिश कर रही थी कि अफगानिस्तान के मसले पर हम बात करें, लेकिन